Good morning, students. Welcome to today's online class. And we have seen in last lecture that what was the photoelectric equation given by Einstein, and he has given this equation on the basis of Planck quantum theory. And what was the Planck quantum theory? According to the quantum theory, Planck says that uh, light waves composed of photons, or we can say quanta, and it have definite energy. So let us discuss the properties of photon. First of all, photon is a packet, or we can say energy packet, having definite energy. And definite energy E is equal to h nu, where h is Planck constant and mu is frequency of radiation. And mu can also be written as uh, c upon lambda. So from here, E is equal to h nu is equal to hc upon lambda. This will be energy of photon. Now next property, photon always travels in a straight line, or we can say radiation travels in a straight line. So photon will also straight line travel in straight line, having energy is equal to h nu is equal to hc upon lambda. Third one, yeah, can say second one, it is electrically neutral. It means it is not deflected by electric field or magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोटोन का डिफ्लेक्शन, रिपल्सन या अट्रैक्शन नहीं होता है. सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन इज frequency of the photon. Means frequency of photons means frequency of radiation. Frequency of photon or frequency of radiation does not change with medium. Frequency does not change with medium. Change with medium. It means जब रेडिएशन किसी एक मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी होगी, उसी रेडिएशन को हम दूसरे मीडियम में ट्रैवल कराएंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी. मीन्स मीडियम के साथ में रेडिएशन या फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होते हैं. तो E इज इक्वल टू एच न्यू. न्यू इज कांस्टेंट फॉर डिफरेंट मीडियम ऑफ ट्रैवल. जो जिस अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करेगा उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट होगी, बट वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस. स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज होता है. वेवलेंथ चेंजेस. दिस इज द third property. First is travel in straight line. Second is it is electrically neutral. Third is frequency of photon always be constant for different medium. फोटोन अगर चाहे डिफरेंट मीडियम में, अलग अलग मीडियम में भी ट्रैवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. So these are the properties of photon. Now
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 332 nanometer, light of wavelength 332 nanometer is incident on a metal surface of वर्क फंक्शन। मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है जिसका जो वर्क फंक्शन दिया गया है इट इज 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.07 electron volt. What will be the value of stopping potential? What will be the value of stopping potential? Stopping potential कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। H की वैल्यू दी हुई भी है, H is equal to 6.63 into 10 is the power minus 34 joule second. What will be the stopping potential? And हमने देखा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है K max is equal to stopping potential of इलेक्ट्रॉन या मेटल सरफेस पे उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितना पोटेंशियल की आवश्यकता होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। सो फ्रॉम द इक्वेशन K max is equal to h nu minus phi। ये कौन सा इक्वेशन है? आइंस्टाइन इक्वेशन। K max is equal to h nu minus phi। यहाँ से जो phi की वैल्यू दी हुई है 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में। 1.6 इंटू 10 इज द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 1. की वैल्यू 1.6 इंटू 10 इज द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। सो K max is equal to K max is electron volt, maximum kinetic energy is equal to stopping potential. So we have to calculate V naught. So what will be the V naught? From here EV naught is equal to h nu minus phi, and this equation can be written as hc upon lambda minus phi, and V naught is equal to E यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ नीचे में आ जाएगा तो E लैम्डा एंड माइनस फाई अपॉन E। नाउ इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो यहाँ से हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। V naught is equal to HC 1.63 इंटू 10 raised to the power minus 34 इंटू C की वैल्यू होती है, व्हाट विल बी द C? 3 इंटू 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सो 3 इंटू 10 raised to the power 8 अपॉन E इंटू लैम्डा 1.6, दैट इज H की वैल्यू 6.63 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू लैम्डा की वैल्यू 332, it is in nanometer. If we want to calculate in nanometer, we have to change it into the meter. So 332 into 10 is power minus 9 मीटर। 10 to power minus 9 मल्टीप्लाई करने से किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर में। सो इंटू 10 to power minus 9 माइनस 5 अपॉन में E। सो व्हाट विल बी द 5? दैट इज 5 1.07 into 10 is power 1.6 into 10 is power minus 19 upon E
1.6 into 10⁻⁹ that is E, value of E. So from this V naught is equal to, multiply this and this, 6.63 into 3 upon 1.6 into 332. So what will we get? 3.74. You will try to calculate it, 3.74, and on calculating this we will get 1.07. So from here V naught is equal to 2.66 volt. 2.66 volt. This will be the stopping potential of a metal surface. It means required to stop the maximum kinetic energy of electron, or we can say stop to stop the maximum kinetic energy electron. So this is the stopping potential, and same type of example can be solved. Different examples are there in your textbook. So let start with the new concept, dual nature of matter. Dual nature of matter. We have seen in photoelectric effect that before that light shows, or we can say radiation show wave nature, and from the photoelectric effect we have proved that radiation also show particle nature. Radiation show wave nature and also particle nature. Now dual nature of matter. Matter, as we know that it show particle nature, but we will see that it will also show particle nature. हम देख रहे हैं कि जो रेडिएशन है हमारे जो यूनिवर्स में, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल है, या वी कैन से two things are there. First is radiation and second is matter. ये दो चीजें हैं जो यूनिवर्स में मौजूद हैं. सो रेडिएशन शो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. जब रेडिएशन दोनों नेचर शो कर रहा है तो पार्टिकल शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. मैटर को भी हम क्या पार्टिकल नेचर और वेव नेचर शो करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्योंकि कभी भी यूनिवर्स में जो भी होता है वो सिमेट्री मेंटेन करने के लिए होता है. मीन्स दे ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द सिमेट्री ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स हमेशा अपने आप को सिमेट्री ऑक्यूपाई करने के लिए या सिमेट्री मेंटेन करने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है. सो यहाँ देखेंगे कि मैटर क्या ड्यूल नेचर शो करता है. सो ये देखा गया कि जो मैटर है वो भी जो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर शो करता है. और इसके बारे में हाइपोथेसिस दिया था डी ब्रोगली ने. डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके वेव नेचर के बारे में एक हाइपोथेसिस दिया. इन्होंने ये कहा था कि जो पार्टिकल होता है जब किसी वेलोसिटी v के साथ मूव करता है, वेलोसिटी v के साथ मूव करता है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट हो जाता है या उससे एक वेव जुड़ जाता है. मीन्स हम किसी एक बॉडी को इस तरीके से थ्रो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो हम जो बॉडी को देख पाते हैं, जैसे हम किसी गेंद को इस तरीके से थ्रो कर रहे हैं, गेंद थ्रो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस उन्होंने ये कहा कि इस गेंद के साथ, इट इज अ मैटर हैविंग मास,
बॉल एक क्या है, मैटर है जिसका कुछ मास है। अगर हम v वेलोसिटी के साथ इसको फेंक रहे हैं, इट मीन्स इट हैव मोमेंटम। p इज इक्वल टू mv, p इज इक्वल टू mv हैविंग मोमेंटम मीन्स इसके अकॉर्डिंग टू डिक ब्रोगली उन्होंने ये कहा कि इसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होगा या वेव भी इससे जुड़ जाएगा जो कि इसके साथ में ट्रैवल करेगा। लेकिन इन जनरल हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो वेव एसोसिएट होता है उसको हम देख नहीं पाते हैं। उसका रीजन भी आगे हम देखेंगे। सो डी ब्रोगली ने ये कहा कि जो इस तरीके से कोई माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक बॉडी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होता है और उस वेव का वेवलेंथ h लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p ये हो जाता है। दिस वाज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो फ्रॉम द दिस रिलेशन मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू m इंटू v, तो यहां से क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। सो दिस इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये किस तरीके से होता है। डी ब्रोगली ने तो ये बोल दिया कि एक कोई भी पार्टिकल होता है जिसका मास m है, अगर वो v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होगा या वेव उसके साथ में मूव करेगा और उसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होगी। सो इसको हम प्रूफ देखते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम देखे थे। फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू h न्यू, जहां पर h क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू विल बी द फ्रीक्वेंसी, न्यू वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, and this is the energy for photon. And now from Einstein mass energy equivalence equation, mass energy equation, आइंस्टीन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि मास और एनर्जी एक दूसरे के पूरक होते हैं। मीन्स मास ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास। तो उन्होंने इसके लिए क्वेश्चन दिया था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इट इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे। सो व्हाट विल बी द फ्रॉम 1 and 2, what will be the equation? H nu is equal to mc square. From this relation m will be h nu upon c square. अब अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो फोटोन की जो मास ऑफ फोटोन है, लेट mass of photon small m travel with velocity c, क्योंकि हमको पता है कि फोटोन वेलोसिटी c के साथ ट्रेवल करता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू c। सो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन P will be mass into velocity. Momentum P is equal to mass into velocity. From here mass, यहां से हम इस वैल्यू को वहां पर पुट कर लेंगे। m is equal to h nu upon c square, h nu upon c square
into velocity c. So from this relation h nu upon में c square into c will be h nu upon c. This is the momentum of photon traveling with speed c, या वेलोसिटी c के साथ है ये ट्रेवल करेगा, तो इसकी जो मोमेंटम होगी p इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन में c होगी. यहां से जो हमारे पास डी ब्रोगली ने इक्वेशन दिया था h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, यही इक्वेशन से ही हमको पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है या मैटर होता है वो ड्यूल नेचर होता है. कैसे? मोमेंटम हमेशा किसी पार्टिकल का होता है, वेव्स का मोमेंटम नहीं होता है. सो इट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर. और लैम्डा हमेशा वेव के साथ एसोसिएट होता है. सो इट शोज द वेव नेचर ऑफ मैटर. सो यहां से हमको मोमेंटम मिला फोटोन का, p इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन c. एंड if we consider different object या different particle, let a particle, हमें कोई मैटर ले लेते हैं जिसकी जो उस पार्टिकल का मास स्मॉल m है एंड ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी v, ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v. तो उसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू एम वी, p इज इक्वल टू एम वी हो जाएगा. और हमको जो p इज इक्वल टू ये जो रिलेशन मिला है h न्यू अपॉन c, यहां से हम देखेंगे कि न्यू अपॉन c, या यहां से इक्वेशन देख लेते हैं, p इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन c. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज c अपॉन न्यू, h अपॉन c अपॉन में न्यू, और c अपॉन न्यू इज इक्वल टू होता है लैम्डा के इक्वल, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी. कैसे होगा? स्पीड जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, एक कंप्लीट वेव ट्रैवल करने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये इसका लैम्डा होता है. सो ये मान लेते हैं डिस्टेंस, स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम इज reciprocal of frequency. So time can be written as frequency. So speed c upon nu is equal to distance traveled lambda. So यहाँ से हमको lambda is equal to मिलता है c upon nu. So it can also be written as p is equal to h upon lambda. H upon lambda. So from this relation, let a particle having mass m and traveling with velocity v, what will be the equation? p is equal to h lambda. p is equal to h lambda. From here mv is equal to h lambda, and from this relation lambda is equal to h upon mv. So from this relation we have got this equation, lambda is equal to h upon mv. From this relation, if a particle moving with infinite velocity, if v is equal to infinite, so what will be the lambda? Lambda will be 0. It means one minute. Yeah, for v is equal to infinite, lambda will be 0, and for v is equal to 0,
लैम्डा विल बी इन्फिनाइट। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसका वेव नेचर क्या हो जाता है, या लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एंड फॉर द वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, जब वो रेस्ट पर है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो इन्फिनाइट हो जाती है किसी भी मैटर के लिए। नाउ कैलकुलेट या वी कैन derive the wavelength या de Broglie wavelength of electron. Let us see what will be the de Broglie wavelength of electron. As we know the mass of electron and let m will be the mass of electron and when electron is put in the influence of electric field, हम जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हैं तो वो उसके कारण मूव करने लगता है। हम उसको किसी पोटेंशियल वी पर रखते हैं तो वो अपने रेस्ट से किसी वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट होने लगता है, एक जीरो वेलोसिटी से इंक्रीज होते होते किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पर इंक्रीज हो जाता है। तो मान लेते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है पोटेंशियल वी के कारण वेलोसिटी स्मॉल वी तक इंक्रीज हो जाता है। सो व्हाट विल बी द de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ में जो वेवलेंथ एसोसिएट होगा वो कितना हो जाएगा। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी जीरो से v वेलोसिटी तक जा रहा है। सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। और हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उस पर जो कार्य कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके या पोटेंशियल अप्लाई करके जो कार्य कर रहे हैं या वर्क डन कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा। वर्क डन विल बी EV, दिस विल बी द वर्क डन। सो जितना हम वर्क डन दे रहे हैं उतना उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो से किसी वैल्यू तक इंक्रीज होगी। सो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ mv²। v और न्यू में ध्यान रखेंगे, दिस इज v एंड दिस इज न्यू। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सो E इट इज अ कैपिटल V, वोल्ट पोटेंशियल हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो। सो फ्रॉम this velocity will be v² is equal to 2 EV upon m. It can also be written as v is equal to small v is equal to under root 2E capital V upon m. This is velocity of electron when accelerated by potential difference v। जब हम उस पर v अप्लाई करके एक्सलरेट कराते हैं तो उसकी वैल्यू v हो जाती है। इफ लैम्डा इज de Broglie wavelength एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण उसके साथ में जो वेव एसोसिएट हो रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। सो व्हाट विल बी द फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ de Broglie हाइपोथेसिस में जो इक्वेशन मिला था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। इस पर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v वी विल गेट h अपॉन m from this equation 2e capital V upon m. So this will be h upon
it is under root. One m is in under root and one m is from outside from under root. So what will be equation? It will become it v 2m e capital V. This will be the equation of de Broglie wavelength associated with moving electron. अगर इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो उसकी जो उसके साथ में जो वेवलेंथ एसोसिएट होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m EV. यहाँ पर हम m e एंड h की वैल्यू जो कि क्या होता है कांस्टेंट होता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10⁻⁹ एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट होता है. h की वैल्यू 6.63 into 10⁻⁹ एंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो भी कांस्टेंट होता है 9.1 into 10⁻31 kg. This is the mass of electron. So from by putting these three values, constant values, we will get lambda is equal to 1.227 upon 1.227 upon under root capital V. Lambda is equal to 1.227 upon under root V in it will be in nanometer. नैनोमीटर में होगा ये. This is the wavelength of electron, sorry, wavelength of wave associated with electron moving with velocity v, where in under root v it is a potential. It can also be written as 12.27 upon under root capital V angstrom. एंगस्ट्रॉम में अगर लिखेंगे तो इस तरीके से होगा. नैनोमीटर में लिखेंगे तो इस तरीके से होगा. वेयर 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 meter. This is meter, and 1 nanometer is equal to 10⁻⁹ meter. These are the relation for the de Broglie wavelength of electron. Let us see one question related to it. Velocity of of a body of mass 10 gram. De Broglie, sorry, what will be the velocity of a body of mass? Velocity of body of mass 10 gram is 2 into 10 is the power is 2 into 10 is the power 3 meter per second. Velocity of a body of mass 10 gram is 2 into 10 is the power 10 is the power 3 meter per second. Find the value of de Broglie wavelength. Find the value of de Broglie wavelength. So what will be the equation? Equation of de Broglie wavelength का इक्वेशन जो हमको पता है वो क्या था. चलिए देख लेते हैं. गिवन क्या क्या है. मास ऑफ बॉडी 10 ग्राम. वी हैव टू चेंज इट इनटू किलोग्राम. So 10 into 10 is the power minus 3 kg.
By multiplying 10 to the power minus 3, we can change gram into kilogram. What will be the velocity? Velocity is given v is equal to 2 into 10 raised to the power 3 meter per second. Find the de Broglie wavelength. We have to find de Broglie wavelength. So lambda is equal to h upon p. P is momentum of particle. P is equal to mv. Now put the values of h, m and v. H is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड. जूल सेकंड है, जूल पर सेकंड नहीं है, जूल सेकंड. h की वैल्यू 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड. By putting these values, lambda is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 upon m की वैल्यू 10 into 10 to the power minus 3 into velocity 2 into 10 to the power 3. By calculating this, we will get the value of lambda 3.31 into 10 to the power minus 35 meter. So this will be the solution or answer, value of lambda. Now we will discuss one more question. Question is, through what potential difference should electron be accelerated so that its wavelength become 0.4 एंगस्ट्रॉम. 0.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा. सो फ्रॉम द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू 1.2, ये वाला जो 1.2 वाला रिलेशन था वो नैनोमीटर में था. सो हियर एंगस्ट्रॉम in unit of angstrom is given, so we have to use 12.27 upon under root capital V. Through what potential difference in angstrom में है, so what potential difference we have to calculate V. So capital V will become 12.27 upon lambda की power 2. So putting the value V is equal to 12.27 upon lambda की value 0.4, we will get V. So from this we will get value of V is equal to 941.0 volt, or in unit just V, 941.0 volt. So this is the question related to lambda of electron, wavelength of electron, or lambda associated with या wavelength associated with motion of electron. इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण उसके साथ जो लैम्डा एसोसिएटेड होता है उसके लिए क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन देख लिया. नाउ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग uncertainty principle. I think we have you have studied this concept. What is Heisenberg uncertainty principle? So according to this principle, Heisenberg said that the
momentum and position. This is cannot be exactly calculated at the same time, या बोल सकते हैं सेम टाइम इंस्टेंट में हम किसी पार्टिकल के मोमेंटम या पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. सो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ Heisenberg uncertainty principle, it is not possible to measure, according to principle, it is not possible to measure the both the momentum and position of particle of matter, we can say, at same instant of time of a matter of or electron, particle, कोई भी हो सकता है. We talk about a particle, हम एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं. Heisenberg uncertainty principle, it is not possible to measure the momentum and position of matter या इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल at same instant of time. एक साथ हम मोमेंटम और उसके पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं. सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. डेल एक्स एंड डेल पी, जो डेल एक्स और डेल पी के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होता है वो अबाउट होता है एच क्रॉस के, और एच क्रॉस इज इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई, वेयर डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. सो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अगर हम वेव्स की बात करते हैं, बिकॉज अ मैटर शो वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, मीन्स अगर ये पार्टिकल वेव के साथ मूव कर रहा है, सो लेट अस ड्रॉ दिस इज अ वन काइंड ऑफ वेव विच डज नॉट एक्सपांड. इसका एक्सपांशन किसी डिस्टेंस के लिए नहीं हो रहा है, मीन्स इसका जो एक्सटेंशन है वो इस लेंथ के लिमिट तक है. एक्सपांशन ऑफ या एक्सटेंशन ऑफ दिस वेव इज डज नॉट मच, मतलब इसका जो एक्सपांशन है ज्यादा डिस्टेंस के लिए नहीं हो रहा है. मीन्स डेल एक्स कैन बी मेजर्ड, डेल एक्स की वैल्यू हमको नेग्लिजिबल मिलेगी, या बोल सकते हैं कि अबाउट 0 मिलेगी. बट हम यहाँ पर वेरिएशन देख रहे हैं किसका? वेवलेंथ का, सॉरी वेवलेंथ का भी, एम्पलीट्यूड का भी. सो फ्रॉम द de Broglie hypothesis, lambda is equal to h upon p, और p is equal to h upon lambda. lambda वेरिएट कर रहा है, so we cannot measure the momentum of this particle in this wave. या हम इसको फोटोन के वो लेके चलते हैं कि इसमें जो फोटॉन्स हैं उसका जो हम मोमेंटम है एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं इस वेव के लिए. सो डेल एक्स is 0 and del p will be infinite for this wave. इस वेव के लिए डेल एक्स को हम
मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स एक्यूरेटली अगर मेजर कर सकते हैं तो डेल पी की वैल्यू इन्फिनाइट होगी, मीन्स ये एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकता है। अगर हम एक दूसरा वेव पैकेट लेते हैं या दूसरा वेव लेते हैं विथ यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड एंड यूनिफॉर्म wavelength, in this wave wavelength is definite, wavelength definite है, it means del p will be zero, means variation in p is zero, p में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, मीन्स एक्यूरेटली हम इसको मेजर कर सकते हैं। बट इट एक्सटेंडेड टू इन्फिनाइट वैल्यू, इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है। कितनी दूरी तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वी डोंट नो, इधर भी यहाँ से कितने डिस्टेंस से ट्रेवल करते आ रहा है वी डोंट नो, बिकॉज इसकी यूनिफॉर्मिटी है। एक यूनिट इंस्टेंट ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में इसका जो वेवलेंथ है, और उस पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में भी इसका जो वेरिएशन हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, सो लैम्डा विल बी कांस्टेंट। तो p कैन बी मेजर्ड बट x कैनॉट बी मेजर्ड, सो del x विल बी इनफिनाइट। del x वेरिएट करेगा मीन्स x वेरिएट करेगा, del x इनफिनाइट हो जाएगा। सो दीज आर द टू कॉन्सिक्वेंसेस। इन दैट केस x कैन बी मेजर्ड, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, पोजिशन कैन बी मेजर्ड। यहाँ पर कौन से पोजिशन पर फोटॉन्स हैं, इट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है बहुत कम है। बट यहाँ से यहाँ तक में ये कौन से पोजिशन पर है, उस फोटोन की पोजीशन को हम मेजर नहीं कर सकते। इसके मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं इस वेव में फोटोन की, क्योंकि इसका जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट है या एक यूनिफॉर्मिटी में है, सो इट कैन बी मेजर्ड, पी कैन बी मेजर्ड। बट इसका जो एक्सटेंशन है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक है, so position of photon cannot be measured in this wave. In this wave position momentum of photon cannot be calculated या measured. So this is the Heisenberg uncertainty principle, and with this chapter is completed.